خوبصورت لہجہ جو اللہ کے نبی کی نام بڑے خوبصورت انداز میں وہ پڑھتا ہے اور آپ کے دلوں تک پہنچتا ہوا وہ لہجہ محسوس ہوگا۔ جناب سمیر رضا الہ آبادی سے میری گزارش ہے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ آئیے استقبال کیا جا رہا ہے نعرہ تکبیر سے۔ نعرہ تکبیر ایک نئی عمر کا نیا لہجہ سنیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص مقدس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آئیے بلا تاخیر کچھ سننے اور سنانے سے قبل سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کی برکت جلتی ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سارے لوگ دل لگا کر درود پاک نظر میں پیش کیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے، خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا ہے۔ سرکار کی نظریں تو گناہگار پیرا سے، سرکار کی نظریں تو گناہگار پیرا سے، اور سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے، سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے۔ مل کر سارے لوگ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ وہ ہے جس کے لیے حمد ہے بے حد، الحمد کی خود اس پہ گواہی ہے بلاد، الحمد کی خود اس پہ گواہی ہے بلاد۔ وہ ذات کے جو تخلیق جہاں ہے، وہ ذات کے جو باعث تخلیق جہاں ہے، اس ذات
کو کہتے ہیں حقیقت میں محمد، اس ذات کو کہتے ہیں حقیقت میں محمد، اس ذات کو کہتے ہیں حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ علماء اکرام ایسے لکھتے ہیں ایک کلام حضمین کے ساتھ کلام بیدم شہبازی یہ چند جی پڑھتا ہوں بولا تھا میں خدایا میرا سفر ہو، خدایا میرا سفر ہو، کبھی تو سوئے رسول، خدا یا میرا سفر ہو، کبھی تو سوئے رسول، زہے نصیب ہو مجھ کو دید روئے رسول، زہے نصیب ہو مجھ کو، نہیں ہے تجھ سا نہیں ہے تجھ سا ہنسی کوئی بھی اے روح رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے کہاں کہاں لیے کہاں پھرتی ہے جستجو رسول، پھرتی ہے جستجو رسول، کہاں کہاں دیے۔ اور ایک بات کو سمجھنا ہے یہ کرتے ہیں سب آہی کلام آہی رنگ بہترین پھرتی ہے جستجو رسول، کہاں کہاں دیے۔ اور ایک بہت ہی پیارا بند پڑھتا ہوں سمجھنا ہے کہاں کہاں لیے جناب حضرت عثمان کی صفات کی قسم، جناب حضرت صدیق کی ادا کی قسم، جناب حضرت عثمان کی صفات کی قسم، حسن بھی فاطمہ حسن بھی فاطمہ شبیر و مرتضیٰ کی قسم، تلاش نقش پائے مصطفیٰ کی قسم، چنے اے آنکھوں سے چنے اے آنکھوں سے چنے اے آنکھوں سے ذرا دکھا کے تو میرا سارا چنے اے آنکھوں سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
جشن عید میلاد النبی عرس مقدس چنے ہیں آنکھوں سے ذرات خاک پور رسول قدم سے لائی ہے. اور ساتھ اکرام تشریف فرمائیں. اور پیارا بات پڑھتا ہوں سماعت فرمائیں. قدم سے لائی ہے کسی کے فیض سے سارا جہاں منور ہے. کسی کے جلوے آرا سے جگ معطر ہے. کسی کے جلوے آرا سے جگ معطر ہے. کسی کے سے کسی کے سارا ساغر ہے سب کسی میرا علی 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 اور کسی میں وہ میرا رسول کسی میرا علی اور کسی میں وہ رسول کسی میں علی اور کسی میں پورے رسول قدم سے لائی گئے. قدم سے لائی ہے تیرے حبیب کی مولا ہو مجھے بے نظر کرم انہی کے در کا گدا بن کہ میں رہوں ہر دم انہی کے در کا گدا بن کہ میں رہوں ہر دم. یہی تمنا ہے یہی تمنا ہے سرور کے قلب کی پیغام عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا کے سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول کہ سب ہو پیش خدا میں روبرو رسول قدم سے لائی ہے. ہستی میں آرزو میں رسول کہاں کہاں لیے کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول قدم سے لائی ہے. پڑھتا ہوں سماعت میں اوپر سے بولے یا رسول اللہ اور اونچی آواز سے جتنے بیٹھے رہتے آواز نہیں آ رہی اوپر سے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. ناشری کے چند اشاروں میں تو سماعت میں
ابتدا نور ہے انتہا نور ہے ابتدا نور ہے انتہا نور ہے واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے ابتدا نور ہے انتہا نور ہے واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے ابتدا نور ہے انتہا نور ہے واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے ابتدا نور ہے انتہا نور ہے واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے ابتدا نور ہے انتہا نور ہے واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے رب کم ہے وہ خیر بنا نور ہے واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے رب کم ہے وہ خیر بنا نور ہے واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے رب کم ہے وہ خیر بنا نور ہے واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے اور بہت پیارا شعر پڑھتا ہوں سماعت میں واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے نور کی ہے سواری سفر نور کا نور سے نور ملنے گیا عرش پر نور کی ہے سواری سفر نور کا نور سے نور ملنے گیا عرش پر نور مہمان کا نور مہمان کا راستہ نور ہے واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے نور مہمان کا راستہ نور ہے واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے نور مہمان کا راستہ نور ہے واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے اور ایک بہت ہی پیارا شعر پڑھتا ہوں سماعت میں واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے زیر شمشیر بھی جو عبادت کرے نوک نیزہ پہ چڑھ کر تلاوت کرے زیر شمشیر بھی جو عبادت کرے نوک نیزہ پہ چڑھ کر تلاوت کرے وہ حسین وہ حسین وہ حسین وہ حسین ابن شیر خدا نور ہے واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے وہ حسین ابن شیر خدا نور ہے واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے وہ حسین ابن شیر خدا نور ہے واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے اور سماعت میں بابا صاحب بولے یا رسول اللہ اور بابا سے لبیک یا رسول اللہ واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے نور ابن نبی نور ابن علی نور ہے مرحبا اہل بیت نبی نور ابن نبی نور ابن علی نور ہے مرحبا اہل بیت نبی شاہ بغداد غوث ورا نور ہے واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے شاہ بغداد غوث ورا نور ہے واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے شاہ بغداد غوث ورا نور ہے واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے اور
جان سے نماز کی شان میں پڑھتا ہوں سماعت ہوں میں واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے کیوں نہ بھارت میں ہو دلکشی ہر طرف نور کے راج کی روشنی ہر طرف کیوں نہ بھارت میں ہو دلکشی ہر طرف نور کے راج کی روشنی ہر طرف بل یقین میرا خواجہ پیا نور ہے نور ہے بل یقین میرا خواجہ پیا نور ہے واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے بل یقین میرا خواجہ پیا نور ہے واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے آخر شیر پڑھتا ہوں سماعت ہوں میں واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا جب رضا نے اٹھایا قلم عشق کا نور کی شان میں یہ قصیدہ لکھا جب رضا نے اٹھایا قلم عشق کا نور کی شان میں یہ قصیدہ لکھا کہ بچہ 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 تیری نسل کا نور ہے واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے بچہ بچہ تیری نسل کا نور ہے واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے بچہ بچہ تیری نسل کا نور ہے واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے ابتدا نور ہے انتہا نور ہے واہ کیا نور ہے واہ کیا نور ہے جی پڑھتا ہوں پڑھے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم صلوات الله وسلام على سيدنا رسول الله صلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اور خواہشیت کے چند اشعار محمد جی 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 کتاب سیرت خواجہ کا ہر عنوان زندہ ہے 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 قیامت تک وہ کردار عظیم و شان زندہ ہے قیامت تک وہ کردار عظیم و شان زندہ ہے قیامت تک وہ کردار عظیم و شان زندہ ہے اور ایک شعر یہ وہ دہلیز ہے جس پر جھکی رہتی ہے سرداری یہ وہ دہلیز
ہے جس پر جھکی رہی ہے سرداری، یہ وہ دہلیز ہے جس پر جھکی رہتی ہے سرداری، یہ وہ دہلیز ہے جس پر جھکی رہتی ہے سرداری، فقیری میں شہنشاہی کی ایسی شان زندہ ہے، فقیری میں شہنشاہی کی ایسی شان زندہ ہے، قیامت تک وہ کردار عظیم و شان زندہ ہے۔ اور میں ٹیکسچر پڑھتا ہوں، سماعت میں زندہ ہے عطائے سید کونین کے چشمے ابلتے ہیں، 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 علی مرتضیٰ کے لال کا فیضان زندہ ہے، علی مرتضیٰ کے لال کا فیضان زندہ ہے، علی مرتضیٰ کے لال کا فیضان زندہ ہے۔ اور سمٹ سکتا ہے اب بھی ظلم کا تالاب کا پانی، سمٹ سکتا ہے اب بھی ظلم کے تالاب کا پانی، سمٹ سکتا ہے اب بھی ظلم کے تالاب کا پانی، سمٹ سکتا ہے اب بھی ظلم کے تالاب کا پانی، سنو اے ظالموں اب بھی وہی مکان زندہ ہے، سنو اے ظالموں اب بھی وہی مکان زندہ ہے، کتاب سیرت خواجہ کا ہر عنوان زندہ ہے۔ اور آخری شعر پڑھتا ہوں، سماعت میں عنوان زندہ ہے، وہاں جود و سخا کا اس قدر ہے خوشنما منظر، وہاں جود و سخا کا، وہاں جود و سخا کا اس قدر ہے خوشنما منظر، وہاں جود و سخا کا اس قدر ہے خوشنما منظر، وہاں جود و سخا کا اس قدر ہے خوشنما منظر، یہی کہتے ہیں سب عاشق میرا عثمان زندہ ہے، یہی کہتے ہیں سب عاشق میرا عثمان زندہ ہے، کتاب سیرت خواجہ کا ہر عنوان زندہ ہے۔ وعلیکم السلام۔ حاضرین کرام، یہ تھے جناب سمیر رضا الہ آبادی، جو بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانے عقیدت اور بارگاہ خواجہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔
बहुत ही खूबसूरत महफिल है। हमारे डाइस पे जलवागर हैं आली जनाब हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अहमद शरीफ मियां साहब और पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा शाह सलीम अशरफ साहब मकाम दरगाह की जलवागरी है। अहले सादात हैं जनाब सैयद काज़ी मियां साहब जो कानपुर से तशरीफ लाए हैं और ये जलसे की सदारत फरमा रहे हैं पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अकमल साहब की नूरानी। बहुत ही खूबसूरत महफिल है। हमारी फहरिस्त में सिर्फ 2 नाम है और इस जलसे को कवर कर रहे हैं ज़मान नेटवर्क साहब और हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। ज़मान नेटवर्क के जरिए पूरी दुनिया देखेगी इस प्रोग्राम को, ये बारगाह है उस सुबहानी को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं कि जो है ये चल रहा है प्रोग्राम, थोड़ा सा आवाज़ कम आ रही है। सभा भाई देख ले, लोगों की शिकायत आ रही है कि आवाज़ वो थोड़ा कम सुन पा रहे हैं। तो बैठ के बहुत खूबसूरत माहौल। अभी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में खराज अकीदत पेश हो रही थी तो मुझे 4 मिसरा याद आ रहा था। कुछ दिनों कबल एक बड़ा कशमकश का माहौल था खानकाहों को लेकर, तो अभी माहौल है खानकाहों को लेकर, दरगाहों को लेकर के बुरी नजरें लोग लड़ाए हुए हैं। तो जब ख्वाजा हिंदल वली पर एक पटिशन दाखिल हुआ कि यहाँ पे हम सर्वे कराना चाहते हैं और देखना चाहते हैं यहाँ इसके अंदर कुछ और है हमारा है, तो पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान तड़प गया था, बेचैन हो गया था कि आया अब तो ख्वाजा हिंदल वली पर भी इनकी निगाह नहीं ठहरी। छोटी छोटी जगहों से निकल करके अब वो सुल्तान हिंद पे इनकी निगाह पड़ गई, उनकी हिम्मतें इतनी पड़ गई। तो एक शायर ने खड़े होकर के बरजस्तगी के साथ कहा था और गरीब नवाज का करम भी हुआ था। उस शायर ने कहा था कि होशियार खबरदार ये जुरात नहीं करना, होशियार खबरदार ये जुरात नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। होशियार खबरदार ये जुरात नहीं करना, सुल्तान से टकराने की हिम्मत नहीं करना। जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबान, जिंदा है अभी हम लोग तो अजमत ख्वाजा के निगहबान ही तो है। जिंदा है अभी अजमत ख्वाजा के निगहबान, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना, अजमेर में सर्वे की हिमाकत नहीं करना। और आपने देखा कि ख्वाजा का करम हुआ और वजीर आज़म हिंदुस्तान में चादर भेजी पेश करने के लिए। ये मेरे आका का गरीब नवाज का करम है। गरीब नवाज ही के सिलसिले के बुजुर्ग, उन्हीं के घर का ये 3 शहजादे यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं इस में हम लोग शामिल हैं। हाज़रीन इकराम, आइए अब एक बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू और एक मैं आपको यह बता दूं, एक खूबसूरत लहजा जिसको लहजे अदा करता हो और लोग सीखते हो। जनाब ज़ैनुल हाफ़िज़ क़ारी ज़ैनुल आबिदीन साहब को वो लहजा हमारे बीच बैठ तशरीफ फरमा है। हम अनकरीब आपके समातों के हवाले करेंगे, लेकिन उससे कबल आइए हम एक बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू, जिस गुफ्तगू को सुनने के लिए लोग बेचैन रहते हैं। मैं एक बात बता दूं कि खिताबत लसानियत लफाजियत का नाम नहीं है। खिताबत सिर्फ गुफ्तगू के हवाई जहाज से सफर करने का नाम नहीं है। खिताबत सिर्फ मोहल्ला में बैठ करके जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर तहरखानी करने का नाम नहीं है, बल्कि खिताबत किसे कहते हैं, गुफ्तगू किसे कहते हैं, खिताबत होती कैसे है, बात कैसे दिलों तक पहुंचाई जाती है, ये अगर फन मालूम है तो आलिम नबी फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना काजी निसार अहमद साहब निज़ामी साहब को मालूम है, जो अमर नूहा से तशरीफ लाए हैं। आइए हज़रत का इस्तकबाल वाले हरा किया जाए। हज़रत का हुक्म हुआ था, सदर साहब का हुक्म है कि आइए वाले का इस्तेमाल किया जाए और नारे तकबीर से हज़रत का इस्तेमाल किया जाए। नारे तकबीर थोड़ा सा बुलंद आवाज से एक ऐसे खतीब को हम पेश करने जा रहे हैं जिसमें 100 इश्तिहार में से 80 इश्तिहार में नाम होता है यूपी के हजरत अल्लामा मौलाना काजी निसार अहमद निज़ामी साहब के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस हजरत अल्लामा मौलाना निसार अहमद साहब बिल्ला। खुदा के वास्ते मोहरे सबूत तोड़ के दे कि तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का पैसा है। इसके बाद हमारी फहरिस्त का आखिरी नाम
जनाब हाफिज गाजी सैनुल आबदीन कानपुरी जो बेहतरीन लहजा आपकी समातों के हवाले हो जाए। मैं तरनूर पर बैठे मैं खड़े के बलवा बैठे बेचारे शोरा इस्लाम तालिबान उलूम नबिया मशाइख इज़ाम हाज़िर मजलिस पर्दा नशीब खातिन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। हज़रात मैंने सलाम किया है ना, चंदा तो नहीं मांगा ना, मैं सलाम किया हूँ ना। हाँ, हम जिस मज़हब से को मानते हैं वो मज़हब मज़हब इस्लाम है। हमारी शरीयत हमें पैगाम देती है, हमारा मज़हब हमें पैगाम देता है कि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात करता है ना तो सबसे पहले सलाम करता है, और सलाम करना सुन्नत, सलाम को सुनकर सलाम का जवाब देना वाजिब, और जो वाजिब को तर्क करता है वो गुनहगार होता है। हम जिस मसलक से ताल्लुक रखते हैं, हमारा मसलक हनफी का तर्जमान मसलक आला हजरत है। हमारा अकीदा हमें पैगाम देता है कि हमारे घर के जिंदे तो जिंदे, हमारे घर के कब्र के मुर्दे भी सलाम का जवाब देंगे। आप पूछेंगे कैसे, तो हदीस रसूल सुने। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक कब्रिस्तान से होता है। आका इरशाद फरमाते हैं, ये मेरे प्यारे सहाबा, जब तुम्हारा गुजर किसी कब्रिस्तान से हो तो तुम सलाम करके गुजरा करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते हैं? क्या ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब देते हैं? आका इरशाद फरमाते हैं, ये मेरे प्यारे सहाबा, ये मुर्दे हमारे सलाम को सुनते भी हैं, हमारे सलाम को सुनकर हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं, और सलाम करने वाले को पहचानते भी हैं। जब आप मुर्दे की समातों का ये आलम है तो मदीने वाले की समातों का आलम क्या होगा? जब इस बार का ये आलम है तो इस बार का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने समाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। तो मैं फिर से सलाम कर रहा हूँ, देखता हूँ कांटा वालों को दोबारा जवाब देते हो कि नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। पहली दफा नहीं आया, मुझे खुद नहीं याद है कितनी दफा आया जी, लेकिन अक्सर मुझे 2 मरतबा सलाम करना पड़ता है। तो इस बार जब आऊंगा ना कभी तो डायरेक्ट 2 मरतबा सलाम करना है ना। तो नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ कर मेरे ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। और हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है, हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है। हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। हज़रात मोहतरम, आज मुराद इस उर्से मुक़द्दस की बाबरकत महफिल में शिरकत की सादत हासिल कर रही हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमाम मुसलमानों की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मक़बूल फरमाए। हम तमाम मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम तमाम मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए।
सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए। हजरत मोहतरम आप देख रहे मिंबर नूर पर मशाइख इज़ाम का काफिला मौजूद है। मिंबर नूर पर आज की इस बाबरकत महफिल की सरपरस्ती फरमा रहे पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत मुर्शिद बरहक औलाद रसूल औलाद गौसे आज़म हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद अकमल मियां साहब क़िबला अशरफुल जीलानी दामत बरकातुहुल कुर्सिया जो मिंबर नूर की ज़ीनत बने हुए हैं। उन्हीं के साथ साथ औलाद रसूल औलाद गौसे आज़म हज़रत मोहम्मद अहमद शिबली मियां साहब क़िबला वो भी मिंबर नूर की ज़ीनत बने हुए हैं। शहजादे हकीम मिल्लत औलाद रसूल औलाद महबूब सिन्ना हज़रत सैयद कलीम अशरफ साहब क़िबला अशरफुल जीलानी वो भी मिंबर नूर की ज़ीनत बने हुए हैं। सैयद गाज़ी मियां और दीगर हज़रात जो मिंबर नूर की ज़ीनत बने हुए हैं। आप देख रहे हैं नकीब अहले सुन्नत उस्ताद हुफ़ाज़ हज़रत हाफिज़ क़ारी अहमद जमाल साहब क़िबला जो मिंबर नूर की ज़ीनत बने हुए हैं। और मेरे बाद इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिंदुस्तान की उस अजीम लहजे से आप मुलाकात करेंगे। मेरी सोच फिक्र ये थी कि पहले शहंशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा क़ारी ज़ैनुल आबिदीन कांतवी पढ़े, लेकिन सदर जलसा का हुक्म है कि मैं ही थोड़ी देर गुफ्तगू करूं। सुनेंगे? हाँ, अपना तफरी का माहौल ना बनाए भैया। अगर 10 मिनट सुनेंगे तो 10 ही मिनट सुनाऊंगा, 15 मिनट सुनेंगे तो 15 मिनट। मैं वो खतीब हूँ कि इस 29 साल उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो इज्जत वो मकाम दिया है कि मैं इस छोटी सी उम्र में पूरे भारत में जाकर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम देता हूँ। अगर आप सुनेंगे तभी सुनाऊंगा, जबरदस्ती में तकरीर नहीं करता। आप मेरी यूट्यूब पर तकरीरें देख लेंगे, पता चल जाएगा कि मैं किसी भी स्टेज पर जबरदस्ती 1 घंटा 2 घंटा तकरीर नहीं करता। जब आवाज सुनना चाहे तभी सुनाता हूँ। आप सुनेंगे तो सुनाऊंगा, नहीं तो मैं आकाओं की बारगाह में हाजिरी देने के लिए आया हूँ। हाजिरी मेरी पूरी हो चुकी है इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और थोड़ी देर आप मुझे सुनेंगे। आपने बुलबुल तैयबा जनाब समीर इलाहाबादी को सुना और आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर इस आस्थाने के खादिम जनाब शाबान चिश्ती साहब मोदी तशरीफ रखते हैं। हजरात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हमरा अपनी और सारी कायनात की मरकज़े अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़नबीन रसूल गिरामी वक़ार हम गरीबों के गमगोसा मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार आक़ाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अनवार में दुरूद व सलाम का नज़राने क़ीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, मैंने आपसे सलाम किया, आपकी ज़बान खामोश है ना। मैंने आपसे कहा नबी पर दुरूद पढ़ो, उस पैगंबर पर दुरूद पढ़ने के लिए कहा ना, जिनके सदके में अल्लाह ने कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को पैदा किया है, जिनके सदके में अल्लाह ने हमें जिंदगी अता की है। आज उस पैगंबर के नाम पर मैंने कहा था कि नबी पर दुरूद पढ़ो, फिर भी ये कौम खामोशी अख्तियार कर ली। जानते हो हालात कितने बदतर हो चुके हैं, मुआशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। एक मुसलमान नबी के मीलाद के बारे में कुछ खबर नहीं रखता है, कुरान की तालीम के बारे में कुछ जानकारी नहीं रखता है, नबी की शरीयत के बारे में मुसलमान को खबर नहीं है। मगर टांडा की जमीन पर बैठकर मुसलमान अमेरिका की खबर रख रहा है, टांडा की जमीन पर बैठकर मुसलमान फिलिस्तीन की खबर रख रहा है, टांडा की जमीन पर मुसलमान बैठकर मुसलमानों पूरी दुनिया की खबर रखने पर आमादा है। मगर नबी के जिक्र के बारे में मुसलमान को कुछ पता नहीं है, नबी के मीलाद के बारे में मुसलमान को कुछ खबर नहीं है। आज एक अल्लाह के वली की बारगाह में हम नजराने अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, बुजुर्गों की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत का नजराना पेश करने के लिए आए हैं। लेकिन हालात देख सकते हो कौम का किस तरीके से अपने तरीके को पेश कर रही है। कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा है, दावे के साथ इस खानकाह में कह रहा हो अगर ए मुसलमानों इसी जगह से हटाकर किसी और जगह पर आवारा लड़की के डांस का प्रोग्राम रखा होता ना, तो ये मुसलमान अपनी इज्जतों का जनाजा निकालने पर आमादा होती, अपने वजूद को मिटाने पर आमादा होती। तब ये उठक बैठक का मामला नहीं रखते, एक काम पर पूरी रात आवारा लड़कियों के
डांस को देखने वालों, अपनी इज्जतों को नीलाम करने वालों, जब नबी के मीलाद का नाम आएगा तो ऐसी महफिल में शिरकत करो। आप जानते हो हालात कितने बदतर हो चुके हैं, तुम्हारी गलत फहमियों की बुनियाद पर तुम्हें सताया जा रहा है। आज दुनिया के अंदर तुम्हें किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबरू पर हमला किया जा रहा है, पूरी दुनिया में मुसलमानों के वकार को मजबूर किया जा रहा है, मगर ये कौम आज भी सोने पर आमादा है, आज भी अपनी इज्जतों को नीलाम करने पर आमादा है। जब किसी ठांडा की जमीन पर किसी बहन की आबरू को लूट दिया जाता है, किसी मुसलमान की इज्जत पर हमला किया जाता है, तब ठांडा का मुसलमान कहता है निसार अहमद निजामी, हम तो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो पैगंबर इस्लाम से अकीदत रखने वाले हैं, हमारे वजूद को क्यों मिटाया गया, हमारी इज्जत पर क्यों हमला किया गया। मेरी कौम के लोगों, आज जो तुम्हारी इज्जत पर हमला किया जा रहा है, तुम्हारे वजूद को मिटाने की कोशिश की जा रही है, ये किसी और की बुनियाद पर नहीं, तुम्हारी गंदे आमाल की बुनियाद पर तुम्हें सताया जा रहा है, तुम्हारी गलतियों की बुनियाद पर तुम्हें मारा जा रहा है। जिस दिन मज़ामे इस्लाम का परचम लेकर, कुरान की तारीफ को सीने में बसाकर, नबी की शरीयत पर अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू करोगे, दावे के साथ कहता हूँ अल्लाह की रहमतें तुम पर नाज़िल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उससे मुक़द्दस है ना, हाँ, जिनको जाना है चला जाए, है ना। 10 लोग रहेंगे तब भी मैं सुनाऊंगा, और कोई नहीं रहेगा तब भी सुनाऊंगा, क्योंकि कोई रहे ना रहे कि उलमा तो है ना। हाँ, हमें मजमे से कोई मतलब नहीं होता है, बस आवाम रहे, जो भी रहे वो ठीक ठाक रहे। लेकिन भाई जिनको जाना है वो जा सकता है, लेकिन उठक बैठक का माहौल मत पैदा कीजिएगा। जिनको भी जाना है मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो उठकर इसी वक्त चला जाए, है ना। जहाँ आप लोग मंजरे हक आपकी निगाहों के सामने, वहाँ के तलबा भी यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह इन तलबा पर खुसूसी फजल फरमाए, करम फरमाए, इनके इल्म व अमल में खूब खूब बरकत अता फरमाए। हमारे मुस्तक़बिल के यही रोशन चिराग हैं, अल्लाह इनकी जिंदगी में खूब बरकत अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप इनके आस्थाने पर आए हैं। कारी अहमद जमाल साहब ने बताया, सैयद करीम अशरफ साहब ने मुझे बताया, ये आस्थाना कोई आम आस्थाना नहीं है, ये ख्वाजा हिंदल वली ख्वाजा नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान का आस्थाना है। इतने अजीम आस्थाने पर आने के बाद मुसलमान को तो अपनी अकीदत और मोहब्बत का नजराना यहाँ पेश करना चाहिए। इसलिए मुसलमानों की ये आस्थाना कोई आम आस्थाना नहीं है, इनके जद्द अमजद का हम पर एहसान है। तब आज हम मज़ामे इस्लाम का कलमा पढ़ रहे हैं, तब आज हम कुरान की तालीम पर अमल कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, जहाँ जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं, आने वाला जो महीना है वो रबीउल नूर का महीना है, और जानते हो इस बार जानते हो रबीउल नूर हम लोगों के लिए कितना बरकत वाला है। मेरे आका पैगंबर इस्लाम की 1500 साल विलादत मुस्तफा की तारीख आने वाली है। उस पैगंबर का 1500 साल जश्न मनाया जाएगा, जिनके सदके में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, जिनके सदके में अल्लाह ने हमें एक मुसलमानों जिंदगी अता की, दुनिया को वजूद में लाया गया। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की बारगाह में आपको लेकर चलो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिंदुल पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में बचते हैं, रब की बारगाह में अकीसा पेश करते हैं। हे रब तबारक व तआला, आज तुमने मुझको इस नेमत से नवाजा है, पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा मैंने तेरे दिल को मुतवाज़िर पाया, इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया। मगर ए मूसा सुनो फकुमा आतैनाका व कुन मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीद व हुब्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो, और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहि सलातु व सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहि सलातु व सलाम अल्लाह की बारगाह में बचते हैं, रब की बारगाह में अकीसा पेश करते हैं। ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहि सलातु व सलाम की मोहब्बत जरूरी है? हम मुसलमानों अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है। इसलिए कि रब कायनात हमारे मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं ज़मीन और ज़मान को पैदा न करता, मैं मदीना और मक्का को पैदा न करता, मैं लौह कलम को पैदा न करता, मैं चाँद और सूरज को पैदा न करता, मैं नबातात और जमादात को पैदा न करता, हैवानात और मखलूकात को पैदा न करता। हत्ता कि ए मूसा
नफसा, मैं तुझे भी पैदा ना करता। हदीस कुदसी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, जब लाके लमा अज़हरतु रब्बु बिका, ए महबूब अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान ना करता। जब इस हदीस कुदसी पर आला हजरत हसीबुल बरकत मुजद्दिद कहते वाजिया व हाज़रा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ती है, वो पुकारते हैं बरेली की मुकद्दस ज़मीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जान की, जान है वो जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। तो हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जिंदगी हमें अता की है ना, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, और हम तक जो दीन फैला है, आज हम जो ईमान वाले हैं, हमारा जो आज ताल्लुक मज़हब इस्लाम से हुआ है, ये किसी और की देन नहीं है, ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। और अपने आखिरी समा के शहजादों ने अपने खून के कतरात को जारी करके मज़हब इस्लाम की आबियागी की हिफाजत की है। ए मुसलमानों, अभी जो महीना गुजरा है उसी को मुहर्रम का महीना कहा जाता है। इसी महीने में हम करबला की दास्तान को सुनते हैं, नवाज़े रसूल की जिंदगी की तारीख को हम निगाहों के सामने रखते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने करबला की ज़मीन पर दीन मुस्तफा के वक़ार की हिफाजत के लिए, कुरान की तालीम की हिफाजत के लिए अपनी गर्दन को कटाया है, अपने बच्चों को कटाया है। क्यों मुसलमानों? दीन मुस्तफा की आबियारी की हिफाजत के लिए। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने नाना जान की उम्मत को ये पैगाम देकर गए थे, नाना जान के उम्मतियों, आज हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में अपने सर को कटा रहा है, मगर नमाज को कज़ा नहीं होने दे रहा है। अगर तुम अपनी जिंदगी को गुजारना तो पहले नमाज की अदायगी करना, फिर खानदान अहले बैत से मोहब्बत का इज़हार। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन आज क्या किया जाता है, हम नमाजों से कोसों दूर हैं, कुरान की तिलावत से कोसों दूर हैं, बुजुर्गों से मोहब्बत का दावा करते हैं। आज सैयद ज़ाकिर अली साहब की बारगाह में हम नज़राने अक़ीदत व मोहब्बत को पेश करने के लिए आए हैं। मगर मुसलमानों, मुझे बताओ, इसी नांदा की ज़मीन से लोग गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जाते हैं, मखदूम पाक की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जाते हैं, वारिस पाक की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जाते हैं, निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जाते हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जाते हैं, आला हज़रत नसीब बरकत की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जाते हैं। लेकिन आपने कितने को देखा होगा कि बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ गरीब नवाज के रोजे की हाजिरी देने के लिए जाते हैं। एक मुसलमानों अजमेर मोहल्ला की ज़मीन पर पहुंच गए। अजमेर की ज़मीन पर पहुंचने के बाद खानवादे ख्वाजा गरीब नवाज में पहुंचे। गरीब नवाज की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत का नजराना पेश कर दिए, अन्ना सागर की सैर कर दिए, चित्ता की भी सैर कर दिए, आरागढ़ की भी सैर कर दिए। मगर 5 दिन बिताने के बाद एक वक्त की नमाज अजमेर में पहुंचने के बाद मुसलमान नहीं पढ़ पड़ता है। और जब टांडा की जमीन पर आएगा तो कहेगा जो अक़ीदत और मोहब्बत लेकर गया था ना, जो मिन्नत और मुराद लेकर गया था, गरीब नवाज ने उन मिन्नतों को नहीं पूरा किया, गरीब नवाज ने उन तमन्नाओं को नहीं पूरा किया। मेरी कौम के लोगों, ये बुजुर्गान दीन जो भारत की जमीन पर भेजे गए हैं, हमें अता करने के लिए भेजे गए हैं, मगर इनसे भागने का तरीका होना चाहिए, इनसे भागने का तरीका होना चाहिए। जब भी बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देने के लिए जाओ तो आप पूरी हिंदुस्तान की तारीख उठा सकते हैं। जहां भी बुजुर्गों के मज़ार देखेंगे, उन्हीं के बगल में मस्जिदों का क़याम देखेंगे। जो मुसलमान अल्लाह का घर बनाया गया, हमको बताने के लिए कौमे मुस्लिम जब बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी देने के लिए आ तो पहले रब की बारगाह में सजदा कर, फिर बुजुर्गों की बारगाह में हाजिरी दे। जब अल्लाह की बारगाह में सजदा करके हाजिरी देगा तो अल्लाह का बताया उस बुजुर्गाने दीन के सदके तुम पर करम की बारिश अता करेगा, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुक़द्दस हज़रत अल्लामा मौलाना काजी निसार निज़ामी साहब किबला। हज़रात मोहतरम, मैं जल्दी खड़े होकर तकरीर नहीं करता हूँ, है ना, इसलिए थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही है बोलने में, लेकिन इन आकाओं के सामने बैठकर बोलना भी बेहतरी है। तो मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूंगा, जैसे भी बोल रहा हूँ थोड़ी देर सुन सकते हैं ना, सुनेंगे भैया? हुसैन रामपीर भाई बिना सुनेंगे? हाँ,
हाँ 10-5 मिनट सुन लीजिए, है ना। हज़रात मोहतरम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की जमीन पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की तारीख में आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ नालंदा की जमीन पर बैठने वाला मुसलमान उसे खबर तो है कि गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दी जाए, गरीब नवाज हमारी फरियाद को सुनते हैं, मगर इसी जमीन से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों से पूछ लिया जाएगा कि मुसलमान ये बता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज क्यों कहा जाता है, जबकि उनके वालिदैन ने उनका नाम हसन रखा था। हसन नाम रखने की बुनियाद पर उनको गरीब नवाज क्यों कहा गया? तो मैं मुसलमानों दावे के साथ कहता हूँ 99% मुसलमानों के चेहरे का उनकी रौनक खत्म हो जाएगी, क्योंकि मुसलमान को खबर ही नहीं है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज क्यों कहा जाता है। क्यों मुसलमानों? इसलिए कि आज मुसलमान नेतागिरी करने में ज्यादा मस्त है, उसकी जिंदगी आज इस तरीके से अपने आप में उसका वकार अपने आप में मजबूत होने पर आमादा है। क्योंकि कौम के मुसलमानों आप अपनी इज्जत का जनाजा खुद निकालने पर आमादा हो, हर गली चौराहों पर आप छोटे नेताओं से मुलाकात करने पर आमादा हो। इस तरीके से आज हर कोई नेता बनने के लिए तैयार है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, नेता बनो मुसलमानों, मगर अपनी कौम का ऐसा लीडर बनो ना जो अपनी आवाज को पार्लियामेंट में घुसा सके, असेंबली में जाकर अपनी आवाज को बुलंद कर सके। ऐ मुसलमानों, आज भारत की तारीफ उठा सकते हो, कहीं भी मस्जिदों को उठाया जा रहा है, कहीं भी खानकाहों पर हमला किया जा रहा है, कहीं भी मदारिस पर हमला किया जा रहा है, किसी आलिम को तंत्र को मार दिया जाता है। हकीकत में हमारी आवाज बुलंद करने के लिए जिनको हम ए मुसलमानों पानी पीती कर वोट दिया करते हैं ना, वो हमारे लिए एक कदम चलने के लिए तैयार नहीं है, असेंबली में बोलने के लिए तैयार नहीं है, पार्लियामेंट में हमारी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये भोली भाली आवाज, एक चाय पर बिकने वाली आवाज, नेताओं की चमचागिरी करने वाली आवाज, जानते हो क्या करते हैं? अभी वही विधायक जी जब इसी खानदा में आ जाएंगे ना, तो उनका परचम लेकर अपने आप में नेताजी जिंदाबाद कहने पर आमादा होंगे। इसी हिंदुस्तान की जमीन पर जिस प्रदेश में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस प्रदेश के मुखिया को सबसे ज्यादा हमने वोट दिया था, ए मुसलमानों उसकी तारीफ उठाकर देखो। एक मुस्लिम लीडर को जब अपने आप में आवाज उठाई गई ना, तो उनके नेताओं के अपने आप में दिल में कोई उमंग नहीं जागी, लेकिन जब उनके लीडर की पीढ़ी पर उंगली उठाई गई तो ए मुसलमानों पूरी पार्टी मज़हब इस्लाम पर उंगली उठाने लगे, कुरान की तारीफ पर उंगली उठाने लगे। मुसलमानों कब तक बोलोगे? अपना एक लीडर अपने अंदर से पैदा करो जो तुम्हारे हक की बात करे, जो तुम्हारी आवाज को पार्लियामेंट में जाकर बुलंद करे। अगर इसी तरीके से दूसरों की गुलामी करते रहोगे तो दावे के साथ कहता हो एक दिन ऐसा आएगा दुनिया तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हारा वजूद मिटता हुआ है ना। हम और आपको चाहिए कि हमें अपना लीडर पैदा करना है। हम भारत की जमीन पर बादशाहत करने वाले, दूसरों का परचम लेकर आज हम मुसलमानों गुलामी का पट्टा गर्दन में डाले हुए हैं। मैं आपको बताऊं मुसलमानों, इसी भारत की तारीख उठाओ, ख्वाजा गरीब नवाज ने किस तरीके से हुकूमत की है। आओ मैं आपको तारीख बताना चाहता हूँ, भारत की जमीन की तारीख में आपको बताना चाहता हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी से मोहब्बत करने वालों, गरीब नवाज की जिंदगी को अपनी आलिम के सामने देखने की कोशिश करो। आओ मैं आपको बताता चलो, अगर मेरा मौजूद सियासत होता ना तो मैं आज आपको बताता कि सियासत पर तकरीर कैसे की जाती है, लेकिन मैंने किसी मौजूद को चुना है, उस पर मुझे गुफ्तगू करनी है। आओ मैं आपको बताता चलूं, अब भी वक्त है मुसलमानों संभलो और उन लोगों को अपने घुटनों पर अपने आप में चलने पर मजबूर करने की कोशिश करो, नहीं तो बुद्धि दूर नहीं है। हमारी खानकाहों को मिटा दिया जाएगा, बोलने वाला एक भी ना होगा पार्लियामेंट के अंदर, बोलने वाला एक भी ना होगा असेंबली के अंदर। एक दर्द है मेरे सीने के अंदर जो आपके सामने में अपने आप में बयान कर रहा हो। किसी ऐसे लीडर को चुनकर अपने आप में भेजने की कोशिश करो। यहाँ पे अगर कोई मुस्लिम क़यादत करता है ना तो लोग भाजपा की पीठ कहकर उसके वकार को मजबूर कर दिया करते हैं, उसकी इज्जतों पर हमला कर दिया करते हैं। मेरी कौम के लोग अगर वो पीठ भी है ना तो वो तुम्हारा है, वो तुम्हारे मजहब से ताल्लुक रखने वाला है, कुरान की अजमत को सीने में बसाने वाला है, पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत करने वाला है। ऐसे लोगों से मोहब्बत किया करो, ऐसे लोगों से अपने आप में अकीदत रखा करो। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुसलमानों, आओ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की जिंदगी को मैं आपको बताता चलो, गरीब नवाज उन्हें क्यों कहा गया है। आओ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की अभी 9 साल उम्र मुबारक है,
یہ مسلمانوں جب عید کا دن آیا ہے جس دن پوری دنیا کا مسلمان عقیدت میں مسلمانوں خوشی و مسرت و شادمانی میں ڈوبا رہتا ہے، جس دن آپ کا بچہ خوشی و مسرت و شادمانی میں ڈوبا رہتا ہے، عید کے دن کی بات ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حقیقت میں مسلمانوں خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے، امی میں عید الفطر کی نماز کی ادائیگی کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، میں عیدگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اے مسلمانوں تیار ہو کر جب عیدگاہ کی طرف جانے لگے نا، ان کی نگاہ کیا دیکھتی ہے کہ سڑک کے کنارے پر ایک نابینا شخص کھڑا ہوا ہے، حقیقت میں اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کے جسم پر گرد و غبار لپٹا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی عمر مبارکہ ابھی 9 سال کی ہے، مسلمانوں غور سے اس واقعے کی طرف جاؤ، آج مومن مسلم کے پاس اخبار پڑھنے کے لیے وقت ہے مگر دین کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں خواجہ کی نماز کی ہسٹری۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چلتے جا رہے ہیں، جیسے ہی اس نوجوان کے قریب پہنچے ہیں اس نوجوان سے سلام کرتے کہتے ہیں نوجوان آج تو عید کا دن ہے، پوری دنیا کا مسلمان خوشی و مسرت و شادمانی میں ڈوبا ہوا ہے، آج پوری دنیا کا مسلمان ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہا ہے، ہر کوئی غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے، آپ کا گھر کو غبار میں لپٹا ہوا ہے، پرانے کپڑے پہنے ہوا ہے۔ حقیقت میں مسلمانوں وہ نابینا نوجوان حضرت خواجہ کی نماز کی سامنے آنکھوں سے آنسوؤں کی قطرات کو جاری کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایک شہزادے میں تمہیں کیا بتاؤں، جن کے ماں باپ دنیا میں ہے نا ان کے لیے آج عید کا دن ہے، جن کے رشتے دار دنیا میں ہے ان کے لیے آج عید کا دن ہے، جن کے بھائی بہن ہیں ان کے لیے آج عید کا دن ہے۔ اور حقیقت ہے مسلمانوں وہ نوجوان کہتا ہے شہزادے تجھے خبر نہیں ہے جب میرے ماں باپ کا انتقال ہوا نا کچھ میرے رشتے دار تھے میری غربت کو دیکھ کر اس سے رشتہ ناتا توڑ دیے۔ آج دنیا کا یہی قانون ہے مسلمانوں کہ اگر ہماری رشتے داری میں کوئی غریب شخص ہوتا ہے تو ہم اس سے رشتہ ناتا توڑ دیا کرتے ہیں، اس کو اپنا رشتے دار کہنے پر بھی ہمیں شرم آتی ہے، لیکن اگر دور سے کوئی ہمارا رشتے دار لگتا ہو نا بہت دور سے کوئی رشتے دار لگتا ہو اور وہ امیر ہو تو ہم پورے محلے میں بھوکال بناتے ہیں، فلاں سیٹھ جی ہمارے رشتے دار ہیں، فلاں سیٹھ جی ہمارے چاچا لگتے ہیں۔ جانے پر اے مسلمانوں ایک کپ چائے بھی نہ پلائے پھر بھی اے مسلمانوں اس سیٹھ کی چمچا گیری ہم کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ میری قوم کے لوگوں غریبوں سے محبت کیا کرو، غریبوں کو عزت دیا کرو، میرے آقا پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ جو غریب کو عزت دیتا ہے غریب کے چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس نابینا نوجوان سے پوچھتے ہیں نوجوان تیری حالت ایسے کیوں ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ شہزادے میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا دنیا میں کوئی رشتے دار نہیں ہے، میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کے سامنے میں جا کر اپنی فریاد کو پیش کر دوں۔ اگر اللہ نے آنکھ دیا ہوتا تو اس آنکھ کے ذریعے کچھ بھیڑ مزدوری کر کے میں بھی اپنے لیے کپڑا بناتا، میں بھی عیدگاہ کی طرف جاتا، مگر میرا کوئی پریشان حال نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کی عمر مبارکہ ابھی 9 سال ہے اس نوجوان کی کلائی کو پکڑتے ہیں، سیدھے اپنے گھر کو لاتے ہیں۔ اے مسلمانوں گھری نماز کی والدہ ماجدہ نماز کی ادائیگی کر رہی تھی، جیسے ہی گھری نماز کو دیکھتی ہے کہتی ہے بیٹا حسن کیا تو عیدگاہ کی طرف نہیں گیا، کیا آج عید الفطر کی نماز کی ادائیگی تجھے نہیں کرنی ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی سنجری کے جواب کو ملاحظہ کرو مسلمانوں، گھری نماز کا ابھی مشورہ ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری کہتے امی اگر آج میں اس نوجوان کو اپنے گھر پر نہ لاتا اللہ آج کسی کی نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول نہ کرتا، اس لیے کہ آج سنجر کی زمین پر ہر مسلمان اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گیا ہے، ہر کوئی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے گیا ہے، مگر کہ لاچار کے نوجوان نابینا لڑکا ایک سڑک کے کنارے پر کھڑا ہو کر آنکھوں میں آنسو کی قطرات کو لے کر رو رہا تھا، وہ اپنی غربت پر رو رہا تھا، اپنی یتیمی پر رو رہا تھا۔ امی میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے ماں کا پیار دلواؤں گا، میں تجھے بھائی کا دلار دوں گا، میں تجھے باپ کا سایہ دلواؤں گا۔ اے مسلمانوں اس نوجوان کو غسل کرایا جاتا ہے، اچھا کپڑا پہنایا جاتا ہے، اس کے بعد اس نوجوان کی کلائی کو پکڑ کر خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس نوجوان کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیتا ہے فرشتوں جا کر میرے محبوب کے شہزادے کو تم حسن نہ کہہ کے پکارو بلکہ غریب نواز کہہ کے پکارو۔ حقیقت میں مسلمانوں غریب
नवाज आगे आगे चल रहे थे। नौजवान उनकी कलाई को पकड़कर पीछे पीछे चल रहा था और अपनी ज़बान हाल से ये कह रहा था, सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहा जाते, सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दर छोड़कर मेरे ख्वाजा ये दीवाने कहा जाते। और हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उससे मुक़द्दस। हज़रात मैं विचार में थोड़ी देर सुनेंगे 10 मिनट। जी बोले। क्योंकि हिंदुस्तान का एक बेहतरीन नाम था जिसकी नाखानी हर कोई सुनने के लिए दीवाना रहता है ना। और यही वजह है कि अगर मैं 10 मिनट ना बोला होता तो अब तक आधा मजमा भी खाली हो जाता, क्योंकि लोग आप तकरीर कम पसंद करते हैं ना। मेरे भाई नात भी सुनो, हम नात के मुखालिफ नहीं है, मगर नाते नबी के साथ साथ तकरीर भी सुनाते हैं, है ना। जिंदगी की इस्लाह तकरीर से होती है, चाहे बोलने वाला आम लहजे में बोले या बोलने वाला अच्छे लहजे में बोले, है ना। हाँ, आप देख रहे हैं हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत मुर्शिद बरहत औलाद रसूल औलाद गौस आज़म हज़रत अल्लामा अलहाज शाह सैयद अकबर मियां साहब किबला अशरफुल जिलानी दामत बरकातुल कुदसिया मिंबर नूर की ज़ीनत बने हुए हैं। उन्हीं के साथ औलाद रसूल औलाद गौस आज़म हज़रत सैयद करीम अशरफ साहब किबला अशरफुल जिलानी तशरीफ रखते हैं। आप मुझसे नहीं कारी ज़ैनुल आबिदीन कानपुरी साहब से कभी मिलिएगा ना तो इस खानदान के बारे में पूछिएगा कि ये खानदान कितना आला खानदान है। और आला के साथ साथ ना इनके अंदर आज भी अपने आबाओ अजदाद का इखलाक़ व किरदार मौजूद है। इनके सामने जब बैठोगे ना, इनके बगल में बैठोगे तो ऐसा नहीं पता चलता कि हम किसी पीर के पास बैठे हैं, ऐसा पता चलता है कि हम किसी दोस्त के पास बैठे हैं। इतना इखलाक, इतनी मोहब्बत और इतनी अकीदत है इन आकाओं के पास। अल्हम्दुलिल्लाह इनसे जब मिलोगे तो खिल जाओगे। मैं तो रोज पीर को देखता हूँ, जो स्टेजी दुनिया में है वो पीरों को बहुत करीब से देखते हैं, लेकिन पीर के हालात क्या है हमसे ज्यादा कौन जानता है। लेकिन हुजूर सैयद अकबर मियां की साथ है कि मैं भी बाबा के कोहल अलग अलग इलाकों में कहता हूँ कि अगर सादगी का कोई पैकर है तो इस दौर में हुजूर सैयद अकबर मियां की ज़ात है, जो मिंबर नूर की ज़ीनत बनी हुई है। उनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और मेरी गुफ्तगू को थोड़ी देर और समाप्त करें। हज़रात मोहतरम मैं आपको बताना चाहता हूँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी के खानदान वालों को आप देख रहे हैं। हकीकत में भारत की जमीन पर इन्हीं के खून के कतरात जारी हुए हैं। मज़हब इस्लाम आज हम मुसलमानों हम तक पहुँचा है, कुरान की तालीम आज हम तक पहुँची है। आओ मैं आपको बताता चलूँ, जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसी मुल्क के हिंदुस्तान की जमीन पर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम देने के लिए आए हैं, कुरान की तालीम को आम करने के लिए आए हैं, तो जानते हो मुसलमानों हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुल्तान की जमीन से होते हुए पंजाब की जमीन से दिल्ली की जमीन पर पहुंचे हैं। और दिल्ली की जमीन से जब अजमेर मोहल्ला का सफर किए हैं ना तो 8 रोज के अंदर उन्होंने ये सफर मुकम्मल किया है। और जानते हो अभी अजमेर में इनका कदम नहीं रखा है, 7,000 गैरों ने मज़हब इस्लाम का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हैं। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बरकत है भारत की जमीन पर। और ए मुसलमानों, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह भारत की जमीन पर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम देने लगे, कुरान की तालीम को आम करने लगे, नमाज का पैगाम दुनिया वालों को देने लगे, हर कोई इनकी इबादत को देखकर मज़हब इस्लाम का जब कलमा पढ़ने लगा तो ए मुसलमानों कुछ लोग उस वक्त के राजा पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे। कहने लगे, राजा एक बाबा ऐसा आया है जो दीन इस्लाम की दावत देता है, जो कुरान की दावत देता है, अगर उसे ना रोका गया तो दीन इस्लाम का परचम भारत की जमीन पर बुलंद कर दिया जाएगा। हकीकत में मुसलमानों, जब पृथ्वीराज चौहान ने गरीब नवाज के बारे में सुना तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अपने दरबार में बुलाया है। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंचे हैं तो एक छोटी सी गठरी लेकर गए हैं, अपने मुरीदों के साथ गए हैं, चंद दरवेशों के साथ जब राजा के महल में एंटर किए हैं, पृथ्वीराज चौहान ने कहा,
था बाबा इस भारत की जमीन पर क्या करने के लिए आए हो? गरीब नवाज ने कहा था भारत की जमीन पर हुकूमत करने के लिए आए हैं, दीन इस्लाम का परचम लहराने के लिए आए हैं, कुरान की तालीम को आम करने के लिए आए हैं। तो जानते हो मुसलमानों, राजा पृथ्वीराज चौहान ने कहा था बाबा तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तुम कसा लेकर लोटा लेकर दीन की तबलीग करने के लिए आए हो, फतह करने के लिए भारत की जमीन पर आए हो। तुम्हारे मजहब से ताल्लुक रखने वाले, तुम्हारे मसलक से ताल्लुक रखने वाले, तुम्हारे दीन से ताल्लुक रखने वाले बहुत से लोग भारत की जमीन पर तुमसे पहले आ चुके हैं, बड़ी बड़ी फौज लेकर आए हैं, बड़े बड़े लश्कर को लेकर आए हैं, हथियारों के साथ लेकर आए हैं, मगर भारत को छोड़कर जाना पड़ा। तो जानते हो राजा के दरबार में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने कितना प्यारा जवाब दिया था मेरी कौम के लोगों। गरीब नवाज ने कहा अब तक जितने भी लोग आए थे अपने हथियार पर भरोसा करके आए थे, अपने लश्कर पर भरोसा करके आए थे, अपनी ताकत पर भरोसा करके आए थे, लेकिन गरीब नवाज भारत की जमीन पर आया है तो अल्लाह और रसूल की इताअत पर भरोसा करके आया है। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत परचम-ए इस्लाम भारत की जमीन पर लहराता हुआ। हकीकत यही है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक मुसलमान दीन इस्लाम का परचम लहराया, लेकिन आप तो सरपसंद लोग हैं जो भारत की जमीन पर मुसलमानों को अपने मुसलमानों के एक नंबर का शहरी मानने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों को आज भी हिकारत की निगाह से देखा जा रहा है। अगर यकीन ना हो मुसलमानों तो अभी इंडिगो फ्लाइट के अंदर जिस शख्स पर थप्पड़ मारा गया उसको देखो टोपी की बुनियाद पर मारा गया, आबकारी की बुनियाद पर मुसलमानों के वजूद को बिठाया जाता है, मुसलमानों की आबरू को लूटा जाता है। आप इसी भारत की जमीन पर दो कानून चलते हैं मुसलमानों, मज़हब इस्लाम को बिठाने की लोग कितनी कोशिशें की कर रहे हैं, मज़हब इस्लाम के वक़ार को किस तरीके से मजरूह किया जा रहा है। हकीकत में मुसलमानों लोग हम पर शक करते हैं, लेकिन उनको खबर नहीं है कि जब भी भारत की जमीन पर कोई उंगली उठाता है ना तो हम मुसलमान सबसे पहले भारत के खून के कतरात को जारी करने पर आमादा होते हैं। यकीन ना हो मुसलमानों, इस मुल्क हिंदुस्तान का दुश्मन पाकिस्तान ने अभी हाल में जब भारत के वक़ार को मजरूह करने की कोशिश की, पहलगाम में हमला की, तो ऐ मुसलमानों हमारे मजहब से ताल्लुक रखने वाली एक बेटी सूफिया कुरैशी ने किस तरीके से उनको धूल चटाकर मज़हब इस्लाम के वक़ार को ऊंचा किया था। दुनिया को बताया था कि दहशतगर्द किसी मजहब का नाम नहीं होता है, किसी फिरके का नाम नहीं होता है। मज़हब इस्लाम ने हर वक्त ऐ मुसलमानों अपने मुल्क से मोहब्बत किया है। मज़हब इस्लाम का मानने वाला मुसलमान अपने भारत से मोहब्बत करता है, अपने मुल्क से मोहब्बत करता है। ये लोग कैसे भूल जाते हैं जो हम पर तरस करते हैं कि जिस मज़हब को हम मानते हैं उनके पैगंबर ने कहा है जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से वफादारी किया करो, उस मुल्क से मोहब्बत किया करो। हमारे पैगंबर ने नबी आखिर ज़माने जहां तक कहा है जिस मुल्क में रहते हो अगर उस मुल्क से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तुम्हारे आधा ईमान की हिफाजत ऐसे ही कर देगा। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों, जो लोग गरीब नवाज की मज़ार को हटाने की बात करते हैं, जो लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी पर हमला करते हैं, जो मुसलमानों को निकालने की बात करते हैं, उन्हें पैगाम दे दो ये मुसलमान है, ये मज़हब इस्लाम से ताल्लुक रखने वाला है, ये आज भारत की जमीन पर है तो तुम्हारी वजह से नहीं, गरीब नवाज की कुर्बानियों की बुनियाद पर है। हकीकत में मुसलमानों जब मैंने ना 2018 के अंदर जब मैंने देखा कि आज NRC NPRC AA का जब मामला उठा था उस वक्त मैं कलकत्ता की जमीन के एक जलसे में गया था। मैंने वहां के जलसे में कहा था मेरी कौम के लोगों घबराओ नहीं, मेरी कौम के लोगों परेशान ना हो, NRC NPRC AA से डरो नहीं, बल्कि तुम अल्लाह के घर को आबाद करो, अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद कर देगा। और ए मुसलमानों में आपको बताऊं जब मैंने देखा कि भारत की जमीन पर मुसलमान इस तरीके से परेशान हो रहा है, इस तरीके से अपने घर बार को लेकर परेशानी के आलम में मुब्तला है, तो मैंने सीधे गरीब नवाज की बारगाह में अरीज़ा पेश किया। ख्वाजा हिंदरबदी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी आप ही बताएंगे, आपके मानने वाले पूरे हिंदुस्तान पर नबी आखिर ज़मा का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, आज इनको निकालने की बात की जा रही है, इनके वजूद को मिटाने की बात की जा रही है। इस भारत की जमीन पर अंग्रेजों से हमने लड़ाई लड़ी है, हमने किस तरीके से खून के कतरात को जारी किया है। आज हमें यहाँ गद्दार कहा जाता है, आज हमें यहाँ बेवफा कहा जाता है। मुसलमान भारत को छोड़कर कहा
कहां पर जाएगा। हकीकत में मुसलमानों गरीब नवाज के गुंबद से आवाज आई निसार अहमद निजामी, मेरी हिस्ट्री को पढ़कर देख ले, मेरी तारीख को पढ़कर देख ले, कौम मुस्लिम को ये पैगाम दे दे। जब गरीब नवाज की हिस्ट्री को पढ़ना शुरू किया ना तो ए मुसलमानों उसी अजमेर मोहल्ला की जमीन पर मैंने एक तारीख को पढ़ा कि अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन है। अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन पर एक मैदान है जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह आराम कर रहे हैं। जब ये मुसलमानों राजा के गुलाम आते हैं, कहते हैं बाबा आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, आपको खबर नहीं है यहाँ पर राजा के ऊंट बैठाए जाते हैं। गरीब नवाज ने कहा था जगह बहुत है, तुम राजा के ऊंट को कहीं और बिठा सकते हो। उन लोगों ने कहा था नहीं बाबा, राजा के ऊंट यही बैठे तो यही बैठेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने अपनी जबान से कहा था कि जब राजा के ऊंट यही बैठे तो यही बैठे रहेंगे। इतना कह के वो मुसलमानों अपने सफर का आगाज करते हैं। सुबह का सवेरा जब नमदार हुआ है, राजा के गुलाम आते हैं, उन ऊँटों को उठाते हैं, मगर ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहा है, ऊँट अपने आप में आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। राजा के बड़े बड़े सूरमा आए, बड़े बड़े पहलवान आए, मगर ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहा है। गुंबद गरीब नवाज से आवाज आई निसार अहमद निजामी, जब मैंने ऊँटों को बैठने का हुक्म दिया तो पूरी ताकत फेल हो गई, ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो भारत के मुसलमानों को पैगाम दे दो कि जब तक भारत की जमीन पर गरीब नवाज है तब तक मज़हब इस्लाम के मानने वाले मुसलमान। मोहतरम, हम भारत की जमीन पर रहकर कभी भारत से गद्दारी नहीं करते। हम तो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से वफादारी करते हैं। और जब भी मुसलमानों जरूरत पड़ी है तो हमने अपने खून के कतार को भी जारी किया है। और 1971-72 की भी लड़ाई को देख लो कि किस तरीके से मज़हब इस्लाम से ताल्लुक रखने वालों ने किस तरीके से अपने वतन के तमामी भाइयों के साथ मुसलमानों कंधे से कंधा मिलाकर किस तरीके से हमने जंग को लड़ा था और पाकिस्तान को मुंह के बल लाकर दिखाया था। हकीकत में लोग हमें कहते हैं पाकिस्तान के मानने वाले हैं, हम कहते हैं मुसलमान हम कैसे पाकिस्तान से मोहब्बत कर सकते हैं। ये मुसलमानों हम तो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क हिंदुस्तान से अकीदत रखते हैं। पाकिस्तानियों को हम अपने जूते की नोक पर रखते हैं क्योंकि हमारा मुल्क हिंदुस्तान है और मुल्क हिंदुस्तान में ख्वाजा का मजार है, आला हजरत का मजार है। हम उनके मोहताज नहीं है, वो हमारे मोहताज है। हकीकत में मुसलमानों हम और आपको चाहिए कि हम मज़हब इस्लाम के परचम के खातिर ऐसा काम अंजाम दे, दुनिया हमारे काम की तारीफ करे। लेकिन आज बड़ी तेजी से हमारी घर की बेटियां मुसलमानों किस तरीके से इर्तिदाद की तरफ बढ़ रही है, अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम करने पर आमादा है। परसों के मवाक़िया में आपको बताना चाहिए था, वो फरीदाबाद शहर हमारा पड़ता है, उसी शहर के अंदर कोर्ट पड़ती है, उसी कोर्ट के अंदर हकीकत में मुसलमानों एक खातून को मज़हब इस्लाम को तब्दील करते हुए देखा गया, अपने मज़हब को छोड़ते हुए देखा गया। मुसलमानों ये तमाम वाक़ियात क्यों हो रहे हैं? इसलिए कि हमने अपनी बहनों को आखिर की दीन की तालीम से दूर कर दिया है, कुरान की तालीम से दूर कर दिया है, नबी की शरीयत से दूर कर दिया है। मज़हब इस्लाम के वक़ार को हमने नहीं बताया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मुसलमानों, अपनी बहन बेटियों को बचपन ही से सैयदा ज़ैनब के वाक़ियात को सुनाया करो, करबला के ताजदार का वाक़िया बताया करो, उन्हें बताया करो बेटी सोन करबला का मैदान था, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद सैयदा ज़ैनब के सर से दुपट्टे को छीना गया था, सैयदा सकीना के चादर को छीना गया था, मगर सैयदा ज़ैनब ने करबला के मैदान से अपने नाना जान की उम्मत की तमाम बेटियों को पैगाम दिया था, एक उम्मत मुहम्मदिया में जिंदगी गुजारने वाली मेरी कौम की बहनों, मेरी बेटियों, तुम पर जब भी मुसीबत आए, कोई बला आए, तो ये मेरी कौम की बेटी सुन, तुम मज़हब इस्लाम के कानून पर अमल करते हुए तो देखना कि खानदान अहले बैत की बेटियों ने करबला की जमीन पर अपने बालों से अपने चेहरे का पर्दा करके दिखाया था। तुम पर भी जब कोई बात आ जाए तो पर्दे का इस्तेमाल करती रहना, इसलिए जिस घर की बेटी पर्दे में रहती है उसका बाप समाज में सर उठाकर चलता है, और जिसकी बेटी पे पर्दा घूमती है उसका बाप समाज में सर झुकाकर चलता है। तो ऐ मुसलमानों, अपने कौम की बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करो। जिस दिन अपनी कौम की बेटियों की इज्जतों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी ये नौजवान तबका ले लेगा, दावे के साथ
کہتا ہو ہمارے سماج کی اصلاح ہوگی, ہمارے معاشرے کی اصلاح ہوگی, کیونکہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں غلط آدمی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے, مسافروں روش کارواں بدل ڈالو, اور جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں ہنگامے, نشاط لذت خواب گرام. میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے, اور بھائی زین العابدین کی نعتیہ کلام آپ کو سماعت کرنا ہے. پھر کبھی موقع ملا تو آپ کی دیار محبت میں حاضری ہوگی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھ سے بولنے میں کہنے میں چھوٹی اپنی غلطیوں کو معاف فرمائے, میرے اساتذہ کرام کی دعائیں میرے ساتھ رکھے, علماء اہل سنت والجماعت کی دعائیں میرے ساتھ رکھے, میرے ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین اکرام, جتھے علی جناب عزت جتھے علامہ مولانا قاری نثار احمد نظامی صاحب قبلہ مقدس الہی علی ولی نورانی جن کی وسیلت پر گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے. بہت ہی خوبصورت ماحول ہے. آج اس بیٹی کی صدارت فرما رہے ہیں اعلی نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا اکمل میاں صاحب کی مقدس الہی علی ولی نورانی. آدھے گھنٹہ لگیے گا نا. وہی پر شیخ اعظم کی موجودگی ہے. حضرت علامہ سید شاہ غریب صاحب قبلہ مقام درگاہ سے تشریف لائے ہوئے, اور میں حضرت سید شاہ محمد احمد قرب شبلی میاں صاحب اور سید غازی میاں صاحب, ان لوگوں کی موجودگی میں اب یہ چاہتا ہوں کہ وہ ماحول وقت آ گیا ہے جس کے لیے آپ بہت دیر سے انتظار کر رہے تھے, منتظر تھے کہ حافظ و قاری زین العابدین صاحب کو سنا جائے. میں ان کا استقبال ان اشعار سے کرنا چاہتا ہوں. علامہ اقبال نے حضور رسول پروانی کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس. یہ بس کہاں سے گزرے گی مجھے نہیں اندازہ ہے. اگر آپ کے پاس سے گزرے تو اس کا ٹکٹ ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. پروانے کو چراغ ہے, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اور الہ آباد کے ایک شاعر نے کہا کہ جانب دوزخ فرشتے لے چلے جب مجھے, گنبد خضرا سے فوراً بولے صدا آئی کہ بس. جانب دوزخ فرشتے لے چلے جب مجھے, گنبد خضرا سے فوراً یہ صدا آئی کہ بس. اور نئی مکتر مالگاوی نے جب قلم اٹھایا تو یوں لکھا, وہ پرجلال چہرے انوار تھا کہ بس. نظریں جھکا کے شمس بھی کہنے لگا کہ بس. رضواں مجھ سے بولے کہ شجرہ بتائیے, رضواں مجھ سے بولے کہ شجرہ بتائیے. میں نے کہا حضور کی امت, کہا کہ بس. رضواں مجھ سے بولے کہ شجرہ بتائیے. میں نے کہا حضور کی امت, کہا کہ بس. یہ کون ہے؟ یہی تو رحمت للعالمین ہے. یہ کون ہے؟ یہی تو رحمت للعالمین ہے. ان کو نبی بنا کے خدا نے کہا کہ بس. ان کو نبی بنا کے خدا نے کہا کہ بس. آئیے اس بس کو یہی فی الحال اسٹاپ دے دیا جائے, ورنہ یہ بس لڑکھڑا جائے گی. کیونکہ اب ایک ایسا لہجہ آنا چاہتا ہے جس لہجے کا ہم استقبال کرنا چاہتے ہیں اور بھرپور استقبال کرنا چاہتے ہیں. واصف سے شاہ خدا شاہ ترنم عالی جناب حافظ و قاری زین العابدین صاحب کا استقبال کیا جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, عرس مقدس. معزز سامعین حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید میں نے دھیرے سے سلام کیا, آپ نے دھیرے سے جواب دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی اچھا ماحول ہے, اور بارش کی وجہ سے کچھ لوگ اپنے گھروں سے نہیں آ پائے, لیکن پھر بھی تعداد کم نہیں ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب بیداری کے ساتھ بیٹھے ہیں. مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی محبت سلامت رہے. آئیے حضرات یہاں سے درود پاک کا حضرات پیش کر لیں. بابا سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی ایک بار اور جی لگا کے درود پاک کا حضرات پیش کر لیں. بابا سے درود
اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے پڑھ لیں. پڑھوں ذرا مجھے ہاتھ اٹھا کے اجازت دے رہے ہیں. ماشاء اللہ. مطلب حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ کریں. مجھے تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے. آواز نیچے والے مائک کی بہت اچھی ہے. ہمارے جمال بھائی کو بلند آواز سے بھی بول رہے ہیں اور مائک کو ان کا اچھا ہے. ہاں ٹھیک ہے. مطلب حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ کریں. ذرا سا اگر جاگ کے سن لیں گے تو میرا حوصلہ بڑھ جائے گا. یہاں حوصلہ بڑھایا جاتا ہے, اچھے نعت کے شعر سنے جاتے ہیں. یہ ٹانڈا کی سرزمین ہے, یہاں اچھا شعر بچ کے نکلنا بھی چاہے تو نہیں بچ سکتا, اسے داد مل جاتی ہے. ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ. مطلب حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ کریں. کل جہاں کا کل جہاں کل جہاں کا جمال لکھ دینا. کیا بات ہے, اچھا مطلب کل جہاں کا جمال. جا کے چوتھا مصرع انشاءاللہ آپ کو بیدار کرے گا. ملاحظہ کریں. کل جہاں کا جمال لکھ دینا, کل جہاں کا جمال لکھ دینا, کل جہاں کا جمال لکھ دینا. میم ہے میم دال لکھ دینا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. میں نے مصرع پہنچایا ہے, مجھے وہ داد نہیں ملی جو میں جو داد ہوں رہا ہوں ٹانڈا کی سرزمین سے. حاضر کرتا ہوں پھر. کل جہاں کا جمال لکھ دینا, میم ہے میم دال لکھ دینا. جب حرم کی جب حرم کی اذان یاد آئے, جب حرم کی اذان یاد آئے, مسجدوں پہ بلال لکھ دے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ کیا سبحان اللہ. بھائی جمیل عبدال بھائی زندہ باد. اور بہت اچھا سنا, میرا دل خوش ہو گیا. آپ نے بہت اچھی داد دی, بہت اچھی داد دی. 20% 25% آپ آمادہ ہو گئے, 100% تک تو چل رہی ہیں آپ کو. کیسے 100% پہ آمادہ ہوتے ہیں انشاءاللہ میں وہ رستہ دکھاؤں گا انشاءاللہ جہاں آپ آمادہ ہو جائیں گے. ملاحظہ کریں. لیکن ایک بات بڑی کثرت سے جو ہے غریب نواز کی چل رہی تھی کہ نہیں, اور اسے ہندوستان میں رہنے کا حق ہے جو خواجہ خواجہ کہتا ہوگا اور خواجہ کو اپنے دل میں رکھتا ہوگا. ذرا پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے محبت سے کہے یا خواجہ, اور محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور وفاداری کا ثبوت دے. محبت سے کہے یا خواجہ. حاضر کرتا ہوں, ملاحظہ کریں. صرف ایک شعر پڑھنے کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا. ملاحظہ کر سنیں. حق تعالی کی اسے کو رضا مل گئی, حق تعالی کی اسے کو رضا مل گئی, حق تعالی کی اسے کو رضا مل گئی,
हक तहारा की उसे को रजा मिल गई, हक तहारा की उसे को रजा मिल गई, हक तहारा की उसे को रजा मिल गई। मेरे आका से जिसे को दुआ मिल गई, मेरे आका से जिसे को दुआ मिल गई, मेरे आका से जिसे को दुआ मिल गई, मेरे